ठीक है, ओके। सो कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट्स यानी जो अभी तक आप लोगों ने स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा, उसमें और इसमें ये फर्क ये है कि जो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसकी बैलेंस शीट थोड़ी डिफरेंट तरीके की दिखती है, पॉइंट नंबर 1. Second point is that it has different types of assets and liabilities which might be new to you. You might have heard, but you do not know that they are part of the balance sheet. And how you record items in the balance sheet, they are controlled by the corporate law, which is known as Companies Act 2013. Right, and there are certain amendments that have been made in the recent years regarding corporate final accounts, so they are also included in the current presentation and the document that I will share with you. So what are the three types of ownerships that we have generally from the forms perspective? Forms of business organization: sole proprietorship, partnership, and company. Right. So the company form or corporate form that has major role to play in the economy. Why? Because it generates maximum employment. Right. It raises the standard of living. Right. It has a better paradigm in terms of assets, liabilities, etc. Number of employees. And if you compare that with sole proprietorship and partnership, the spread is very low, right? So spread of a company is very, very high. Sole proprietorship and partnership, they are in terms of spread, they are very, very low, right? So what we will do in this chapter, we will see how financial statements are made, under what formats, and how company is supposed to present the financial formats, right? Basic features of the company, I'm not going to cover this. We have done this a lot. हमने पिछले semester में भी एक subject पढ़ा है, business organization, forms of business organization, what is a company, form of ownership, etc., etc. Registration of the companies we have seen, right? We know limited liability, unlimited liability, liability limited with the guarantee of the members. The company has to have memorandum of association, and it has articles of association as an optional document, right? What is the name of the company, how memorandum of association should look like, what are the different components of memorandum of association, articles of association. I'll give you this document to review, but I'm not going into the details because we have already studied this the previous semester, right? For all the companies, they must have a certificate of registration from registrar of companies, right? And that registration certificate is called registrar of companies certificate of incorporation, COI, certificate of incorporation, which is called the registration certificate of the company, which has the authorized capital, which has the authorized capital and which has the authorized capital as well as the authorized ownership of the company and the other details related to the registration of the company. Companies can be public limited or private limited, that we know. What are public limited companies, what are private limited companies, right? These are the things that we are waiting for. Preliminary expenses, we know when the company is being formed, at the time of formation, we do certain types of expenses: stamp duty, fees paid to the brokers, managers, underwriters for printing of different type of documents, right? Registration documents, etc. Board of directors, we know what is the composition of board of directors. Now, what are the financial statements of the company? Trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, and ultimately you make a balance sheet, right? Right? Balance sheet is prepared by the companies, right? It is after the profit and loss appropriation account. Vertical format is going to be the most suitable format for preparing the balance sheet of corporates. Vertical format हम study करेंगे. Concept of the balance sheet remains the same.
It has the liabilities, it has assets, it has the sides where the names are mentioned, and then you have the amounts. बट जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं. देखिए, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है वो ऐसा है, और जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जैसे वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर भी अलग अलग हेडिंग्स के अंदर वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ liabilities and what are the different types of assets. So देखिए, share capital, इसके अंदर you would see whether it is equity share capital, preference share capital. Reserves and surplus में you would like to see whether it is a capital reserve, whether it is a general reserve, whether it is provision for bad debts, right? Whether it is reserve for doubtful debts, whether it is reserve created for redemption of debentures. Secured loans के अंदर कितने तरीके के secured loans हैं? हो सकता है आपने अलग अलग पार्टी से अलग अलग टेन्योर और अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स के लोन्स ले रखे हैं, तो मल्टीपल हैं 2 या 3, तो वो दोनों तीनों सिक्योर्ड लोन्स के अंडर की कैटेगरी में आएंगे. देयर विल बी अनसिक्योर्ड लोन्स इफ यू हैव टेकन मल्टीपल, देन दोस मल्टीपल विद नेम्स विल कम ओवर हियर. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं that I am an organization, I have taken one loan from State Bank of India, I have taken another loan from Punjab National Bank. Both are secured loans. From State Bank of India, I have taken a loan of 9%. From Punjab National Bank, I have taken a loan of 8.5%. So in secured loans category, I will say secured loan from State Bank of Punjab, 9% secured loan from State Bank of India, right? And 8.5% secured loan from Punjab National Bank. Similarly, the same thing goes for unsecured loans. I hope you understand the difference between secured loans and unsecured loans. कैसे collateral रखे जाते हैं, कैसे secured, unsecured होते हैं loans. Right. Similarly, for current liabilities and provisions, you will specify over here how many creditors are there, bills payables are there, for example. Right. Provisions, if there are any provisions for the short term का मतलब वो provisions जो आपने bad debts के लिए create कर दिए हैं या depreciation के लिए create कर दिए हैं, which will be utilized in the next 1 year. Right. Assets के अंदर भी, you know, what are the fixed assets? Land, building, machinery. Right. These are the furniture. These are the fixed assets. करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपको पता है करंट एसेट्स क्या होती हैं. करंट एसेट्स वो होती हैं जो कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन पर्टिकुलर. राइट. लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ एसेट्स में इसलिए हैं कि आपने किसी को लोन्स और एडवांसेस दिए हैं. राइट. आर यू सपोज टू रिकवर मनी फ्रॉम द डेटर्स? राइट. डेटर्स कौन होते हैं? जिनको आप एडवांस में लोन दे देते हैं. आप एडवांस में उनको मनी, माल दे देते हैं और जो पैसे होते हैं उसके लिए वेट करते हैं. So these are parts of current assets, loans and advances. Any kind of miscellaneous expenditure that is going to be the part of your, for example, prepaid expenses, for example, any expenses that are going to be owned by you. These are the things which would come under assets. P&L debit balance या इसलिए लिखा है, if there are losses, then usually that is shown as P&L debit balance. Right. It will be adjusted out of capital later, but it is shown in the in the asset side just to reflect that, you know, this is the loss from the business. Right. Investments, you are aware of this, that if there are any long term investments, देखिए current assets के अंदर भी investment आ सकती है, लेकिन current assets के अंदर वो investment आती है which can be utilized, which can be sold and immediately realized in cash within 24 hours or very less amount of time. अगर investments long term हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या कुछ इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स आपने किसी के ले रखे हैं, यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी, then that investment will come here. आप ऐसे ही overnight बेच करके उसको नहीं निकल सकते. So that is where investments will be separately mentioned. Current assets के अंदर जो investments होती हैं वो separate होती हैं. Right. ये इसके अंदर शेयर कैपिटल के बारे में लिखा है कि what type of share capital is there, then what is authorized capital, what is issued capital, what is subscribed capital, what is called up capital, and what is paid up capital. ध्यान रखने वाली बात ये है, ऑथराइज्ड इशूड कैपिटल जो है वो कभी भी शेयर कैपिटल के अमाउंट कॉलम में नहीं आएगी. ऑथराइज्ड कैपिटल तो फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है कंपनी दैट कैन रेज, उससे ऊपर कैपिटल रेज नहीं कर सकती कंपनी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखी होती है कंपनी के. सो दैट इज फॉर एग्जांपल इफ आई से $100,000 million एग्जांपल, एंड योर करंट पेड अप कैपिटल इज $100 million. Right.
So $100 million is going to be the part of your share capital, which is called paid up capital also, right? Paid up capital is what? Is if you sum total the called up capital along with subscribed capital, that is where you can find the balance between paid up capital and called up capital. आपने मांगा पैसा और कितना आ गया आपके पास, राइट? तो पेड अप कैपिटल जो है वो अल्टीमेटली वो कैपिटल है जो अमाउंट के पोर्शन में आएगी. ये तो वो कैपिटल है. कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि आपने पैसे मांगे, people paid or not, that is what is paid up capital, right? Subscribed capital का मतलब क्या है? Subscribed capital is that people are interested, they have shown interest and they have given subscription money for that. 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए दिए. Can I show that as share capital? No, क्योंकि अभी मैं और पैसे मांगूंगा. जब सारे पैसे आ जाएंगे और वो सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल में, that amount will be called paid up capital. 100 rupees asked, 100 shares subscribed, 1000 rupees, 10,000 rupees available. That is what is paid up capital. Types of share capital, I am not going to go into the details. आपको सबको पता है इक्विटी और ये होता है. रिजर्व्स हम लोगों ने खूब डिटेल में पढ़े हुए हैं. रिजर्व्स और सरप्लस जो होते हैं वो ओनर इक्विटी का हिस्सा होते हैं, बट अलग अलग पर्पसेस से बनाए जाते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम का रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड बनाते हैं आप. देयर इज अ मेथड, हमने डिबेंचर रिडम्पशन में पढ़ा था. आप सिंकिंग फंड बनाते हैं और उसको उठा करके इन्वेस्ट कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डिबेंचर रिडम्पशन पीरियड आप उस सिंकिंग फंड को वापस लेकर आते हैं. जितना उसमें प्रॉफिट होता है उसे ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में, और जितना अमाउंट का डिबेंचर का रिडम्पशन करना होता है उसका यूज करके उसे रिडीम कर देते हैं. ठीक है, क्लियर? यस सर. ओके. सिक्योर्ड लोन्स, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. लोन्स सिक्योर्ड तब होते हैं जब आप अपनी किसी प्रॉपर्टी या किसी प्रेशियस चीज को बैंक के पास बोरो करते वक्त सिक्योर करवा लेते हैं. बैंक अपने पास रख लेता है उसका डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट इफ एनी टाइम यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट ऑफ, द बैंक इज सपोज्ड टू सेल इट एंड टेक द मनी बैक, रिकवर द मनी बैक. ठीक है. अनसिक्योर्ड लोन्स, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी बैकिंग नहीं होती है, इट इज स्ट्रेट अवे पेड बाय द बैंक ऑन रिलेशनशिप टर्म्स. ठीक है, क्लियर? Current liabilities and provisions, I am not going to share the examples. You know everything very well, so I'm not going into the details of fixed assets. You know that. Investments, I have explained. Current assets, loans and advances, we are very well aware of that. You can see the examples: stock, debtors, cash and bank. Loans and advances, the advances that you have given to employees, the expenses that have been made in advance, the interest that has been paid in advance, etc., etc. Right? अगर किसी सर्विस को आप यूज करते हैं, you have given the money in advance, so that becomes your asset. Once you have utilized the service, then it is called expense for you, right? Prepaid expenses जो हम करते हैं वो इसका एक example होता है, right? Miscellaneous expenditure that are going to give you long term expenditure, preliminary expenses, underwriting expenses, ये आपके लिए बहुत, इसको asset side में आप इसलिए डालते हैं because preliminary expenses is going to generate a corporate organization. A corporate organization, right? It is going to own assets, it is going to have liabilities, it will draw long-term profits, long-term gains, long-term advantages for you. इसलिए preliminary expenses को over a period of time अपनी उसमें दिखाते रहते हैं आप लोग बैलेंस शीट में, और धीरे-धीरे करके राइट ऑफ करते रहते हैं. Underwriting expenses, again the same. When you are issuing shares, you have to undergo the process of underwriting. तो underwriting का expenditure आपके लिए profit है, क्योंकि ultimately आप जाकर के शेयर होल्डिंग में चले जाएंगे, आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, कैपिटल आ जाएगी फॉर एक्सपेंशन, फॉर रिनंसिएशन, राइट? तो अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस भी एक तरीके से आपकी एसेट्स हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको राइट ऑफ कर देते हैं. P&L डेबिट बैलेंस, नथिंग बट द लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी. ये बहुत सिंपल आपको मैंने बता दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो एक आप बनाते हैं, ये आपको पता है नेट प्रॉफिट बनाने के बाद जब आप रिजर्व्स बनाते हैं, जब आप वो ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसको प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसके अंदर एडजस्ट करना होता है, डिविडेंड आपको पे करना होता है, राइट? कितना आप डिविडेंड बनाएंगे और कितना आप रिजर्व्स बनाएंगे. हमने पिछले यूनिट के लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड्स, राइट? इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड, राइट? क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स. तो उसके लिए आप ये अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हैं,
और नेट प्रॉफिट को बेसिकली खत्म करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, ट्रांसफर करके इस पैसे को या तो डिविडेंड डिक्लेयर करके डिविडेंड पे कर देते हैं और कुछ पैसा आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इनकम टैक्स, this is very very important for us to understand that taxes are always paid as part of profit and loss account. क्यों? क्योंकि जो आपकी इनकम हुई है उस इनकम पर टैक्स लगता है, एंड यू नो योर इनकम व्हेन द ईयर एंड्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही टैक्स आ जाता है। तो जो प्रॉफिट आपको दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको जनरली बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो टैक्स जो है वो पेएबल है एट द टाइम ऑफ इनकम। ऐसा नहीं है कि इनकम हो गई मैं 1 साल के बाद टैक्स पे करूंगा, दिस इज नॉट व्हाट द रूल इज, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ सेपरेट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, and it has cohesion with Companies Act 2013, and as part of Companies Act 2013 it is mandatory to follow all other laws of the land. कंपनी जो भी बनेगी हिंदुस्तान के अंदर उसके लॉज ऑफ द लैंड जो हैं they will have to be complied with very very clearly. तो इनकम टैक्स इज another act which a company has to follow. अगर उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इनकम दिख रही है, रेवेन्यू दिख रहा है, तो उसको उसका टैक्स पे करना होगा। कॉर्पोरेट टैक्स हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो पे करने के बाद आपका प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है। मैंडेटरी है आपको पे करना। यू कैन नॉट से दैट आई डोंट हैव इनकम आई कांट पे, तो फिर कंपनी किस लिए खुली है आपके पास अगर इनकम नहीं है तो, राइट। तो यू आर बेसिकली वर्किंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। कोई कंपनी लॉस के पर्पस से कंपनी ओपन नहीं करती, राइट। सो वी नो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट। वी नो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप कंपनी इसलिए खोलते हैं कि एक लंबे समय तक चलेगी, हम इससे प्रॉफिट कमाएंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। कोई भी ये नहीं बोलता है कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ 10 साल के लिए। Nobody says that. No company document, no registration form says that we are opening the company for 10 years. After that, we will wind it up. It is not right. Right? तो इस तरीके से जो है इनकम टैक्स है। ये बेसिक्स हैं जो एक बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देंगे आपको, जिसका फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल ये है, but vertical format is more popular in terms of chartered accountancy, in terms of making financial statements, checking financial statements that I'm going to share with you in a short while from now. कोई क्वेश्चंस जो अभी तक आपको समझ ना आए हो तो प्लीज बताइए। Any questions? No, sir. Okay, I am assuming that it is a no. Great. तो समझ में आ रहा है, ये बहुत सिंपल है अभी तो। अभी मैं जब इसका फॉर्मेट डिस्कस करूंगा then you will be able to understand better. Now, why do you need financial reports? Who are the people who are supposed to use financial reports? ये आप इतनी बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, who are the people who are supposed to use it? जो सबसे पहली कैटेगरी है, that category is owners. People who are having equity shareholders in your organizations, people who are in your organization, people who are owning preference shares in your organizations, they are the owners of the company. And equity shareholders, they have the voting right as well in the organization to elect the boards, board members, to elect the chairman, to elect the managing director, to remove them, right? So they need your financial statements for what? For P&L appropriation account, for balance sheet. How strong is the asset side of the company? How many liabilities are there? Are they balanced or not? Are we having lesser income and more losses? Right? What is the amount of dividend that I'm going to get every year? कितने रिजर्व्स हैं हमारे पास? हम किस रिजर्व का इस्तेमाल करके डिविडेंड बांटते हैं? हमारे पास कितने डिबेंचर्स हैं और कितनी जल्दी हम डिबेंचर्स को वाइप आउट कर सकते हैं? हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं? डू वी नीड मोर कैपिटल? अगर कंपनी डिसाइड करती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट वी नीड मोर कैपिटल, ओनर्स कैन रेज अ क्वेश्चन कि व्हाई डू यू नीड मोर कैपिटल? किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? These kind of things may come up. तो ओनर्स, मैनेजर्स को क्यों चाहिए किसी कंपनी के अंदर? चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर्स हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजर्स हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर्स हो, उनको इसलिए चाहिए कि दे हैव बीन असाइन्ड देयर टास्क्स, कि कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, सेल्स इंप्रूव करो, गुड क्वालिटी के लोगों को हायर करो, राइट?
इम्प्रूव द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंस मैनेजर्स को क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करिए, कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का नेटवर्थ रेशियो अच्छा होना चाहिए, कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, शेयर कैपिटल एप्रिशिएट होनी चाहिए, रिजर्व्स अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स शुड गेट अस गुड रिटर्न्स, सेल्स बढ़नी चाहिए। तो मैनेजर्स कहां से स्टडी करेंगे इस डेटा को? दे विल बी एबल टू स्टडी दिस डेटा ओनली विद द यूसेज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलग अलग पोर्शंस जो हैं, मैं परचेज कितनी कर रहा हूं, मैं सेल्स कितनी कर रहा हूं, राइट, परचेज के ऊपर कितना एक्सपेंसेस है, सेल्स के ऊपर कितना एक्सपेंसेस है, कहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के रेशियोज बनाते हैं, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी रेशियो एनालिसिस एज वेल, that what is the operating ratio, what is the leverage ratio, what is cash ratio, right, what are the debtors ratio। तो इस तरीके के रेशियोज भी हम समझेंगे जो मैनेजर्स यूज करके they will decide what is right, what is wrong, how to improve performance in sales, how to improve performance in expenses, how to reduce expenses, how to minimize the cost of production। ये सारे decisions they will be able to see and realize only through the numbers that are there in the overall balance sheet and profit and loss account। Employees, obviously, because employees are interested in the company, how much profit the company is earning, उस प्रॉफिट में से हमको बोनस कितना मिलेगा, because they are the people who have performed, their performance is basically causing the profits and losses। तो ये सारी चीजें जो हैं एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिखाई देंगी। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हो, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जिनको लगता हो कि नहीं हम फ्यूचर में इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वुड यूजुअली इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे उनको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलेगा। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे बैंक्स हो, चाहे ब्रोकरेज ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, राइट, किस तरीके की जहां पर आपके शेयर्स रखे हैं, एनएससी, बीएससी, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंटरेस्ट होता है, जस्ट टू एनालाइज दैट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज फेयरिंग, हाउ प्रोस्पेक्टस is your organization and how better it can do। ठीक है जी। तो these are the people who are supposed to use the financial statements। Clear? Yes, sir. Any questions? All okay? Yes, sir. ठीक, गुड। तो ये आपके जो यूजर्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, ऑडिट लीगल इम्प्लीकेशंस हो गए, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, इसको एक बार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP, आपने 11th 12th में एक सेट ऑफ गाइडलाइंस पढ़ी होंगी जिनको कहा जाता है कि देयर आर जनरल प्रोविजंस इन द अकाउंटिंग फील्ड, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको आप रिव्यू करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट। और इन बोर्ड्स के अंदर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, AS1 AS2 करके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप किस तरह से लाइबिलिटीज को रिपोर्ट करेंगे, किस तरह से एसेट्स को रिपोर्ट करेंगे, वो सारे इंक्लूडेड है। तो इंडिया के अंदर जो एक कंपनी काम कर रही है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, चाहे वो इंडिया के अंदर बनी हो या इंडिया के अंदर ना बन के बाहर से आके इंडिया में ऑपरेट कर रही हो, गैप और IASB और IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट इसके ऊपर काम करना ही होगा, क्योंकि जो कानून बने हुए हैं या अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अक्रॉस द ग्लोब सेम है। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, आई कैन रिपोर्ट दीज अकाउंट्स इन जर्मन, फ्रेंच, राइट, बट in Hindi or English, but the problem is that they have to follow the same practice that are there as per GAAP, as per accounting standard 1 to 2015, जो भी वो standards हैं। So we have to keep in mind that along with following the Companies Law, Income Tax Act and other types of acts, Factories Act 1948, etc., we have to keep in mind that we are compliant with generally accepted accounting principles and practices, right? चाहे आप इंडिया में बनी हुई कंपनी हो, चाहे बाहर बनी हुई कंपनी हो, चाहे ग्लोबल कंपनी हो,
चाहे आपका ओरिजिनेशन इंडिया से हो, चाहे आपका ओरिजिनेशन यूएस से हो। अब तो ये भी हो गया है, आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो यूएस के अंदर कानून है, राइट, जिसको सॉक्स कंप्लायंस बोलते हैं, सार्बेन्स ऑक्सली कंप्लायंस, वो अगर इंडिया की कोई कंपनी है जिसके ट्रांजैक्शंस यूएस की किसी कंपनी के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रहे हैं, तो सार्बेन्स ऑक्सली कंप्लायंस उस इंडियन कंपनी के ऊपर भी लगता है। अगर अमेरिका में कोई फ्रॉड हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो जो SEC, जो वहां सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, इट कैन कॉल यू for an explanation over there. It can call the Indian company will have to go and make a statement. एक जमाने में, I don't know how many of you remember, but it is a very old thing. शायद आप बहुत छोटे रहे होंगे, सत्यम कंप्यूटर्स करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में, राइट? तो सत्यम कंप्यूटर्स ने कुछ, वो इंडिया में भी थी, यूएस में भी थी, यूरोप में भी थी, इट वाज अ ह्यूज कंपनी। बट इसके जो ओनर्स थे, स्पेशली पर्टिकुलरली रामलिंगा राजू करके एक साउथ इंडियन थे, he was he was the owner of the company, he was the founder of the company, he was a big entrepreneur. कुछ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब 100 रुपए की एसेट को 1000 दिखाया, लाइबिलिटीज को 50 की बजाय 25 दिखा दिया, इस तरह से अपनी बैलेंस शीट के नंबर्स को इन्फ्लेट कर दिया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसमें मिले हुए थे, बैंक के वैल्यूएशन वाले भी लोग मिले हुए थे। इट वाज अ कंप्लीट, उसको क्या बोलते हैं, कोल्यूजन के साथ करी गई एक्टिविटी थी, जो पकड़ी गई यूएस में। एंड देन दे वर कॉट एंड दे वर आस्क्ड टू कम एंड अपीयर इन द यूएस कोर्ट, बट दैट गाय सरेंडर्ड इन इंडिया, बिकॉज यूएस जाता तो उसको पूरा ही खराब कर देते। इंडिया में ही वाज अरेस्टेड, ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स, द कंपनी वाज अल्टीमेटली सोल्ड टू टेक महिंद्रा, जबकि टेक महिंद्रा से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी होती थी सत्यम कंप्यूटर्स। इट वाज अ decent global brand, but why did they do that and what was the reason behind it is lesser known fact. But the point was कि PwC जो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस तक पर धब्बा लग गया था कि उन्होंने ठीक से ऑडिट नहीं किया और इतने बड़े गैप्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर आ गए। तो वो जो इन्फ्लेटरी जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं, दैट इज इन नॉन कंप्लायंस टू द गैप, नॉन कंप्लायंस टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, नॉन कंप्लायंस टू सॉक्स रिपोर्टिंग इन यूएस। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। अभी जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, वो मैंने आपको इसके कंटेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है जी, चैप्टर 1 शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे इसके जो है एक शेड्यूल 6 के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट एंड वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस शीट में देखा भी था, दैट दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट, राइट, फॉर रिपोर्टिंग corporate balance sheet, right? The vertical format is slightly different, right? तो कैसे इसमें काम करेंगे? There are, so the first is that part 2 of schedule 6, it deals with the requirements as to profit and loss of the company, which means profit and loss account of the organization, right? Part 3 of schedule 6 will tell you what is the interpretation of certain terms. अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आप करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट व्हाट डज इट मीन। क्लियर? मीनिंग हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। इफ समबडी हु इज अ लेमैन हु डज नॉट नो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ही शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्ट 4 of the schedule 6 will contain the balance sheet and general business profile, balance sheet and general business profile, right? तो इस तरीके से हम लोग शेड्यूल 6 को बनाएंगे। तो अगर आप शेड्यूल 6 देखेंगे, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शेड्यूल 6 इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही मैंने आपको यहां पर भी दिखाया है। तो दिस इज मोर क्लियरर, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और इस तरह से आप हेडिंग्स डालेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर जो है एक चीज जो मिसिंग है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। करंट ईयर की फिगर्स को प्रीवियस ईयर की फिगर्स से कंपेयर किया जाता है फॉर बोथ एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is the previous year figures for liabilities? What is the current year figures for liabilities? What is the current year previous year figures for assets? What is the current year figures for assets? बिल्कुल क्लियर कंपैरिजन होता है। लास्ट ईयर ये हुआ, इस साल ये हुआ, लास्ट ईयर ऐसा हुआ, इस साल ऐसा हुआ,
राइट। सो अगर आप 2021-22 की बैलेंस शीट बना रहे हैं एट द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, तो यहां पर इस जगह पर आप 2020-21 की भी बैलेंस शीट डालेंगे और यहां पर भी एसेट साइड में भी 2020-21 की फिगर्स डालेंगे. Here it will be 21-22. क्लियर? ठीक है जी, क्लियर है? यस सर. और ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं सारा, तो इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं. यू कैन क्लियरली सी कि आपको क्या क्या चीज इसके अंदर डालनी है. इसमें पूरी पूरी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो कानूनन तौर पर लिखी हुई हैं उसके अंदर, दैट यू कैन रीड. बट मैंने आपको इन जनरल सब कुछ कवर करवा दिया है एज टू व्हाट हैज टू बी मेंशन्ड ओवर हियर. क्या क्या चीज सिक्योर्ड लोन्स देखिए, सब वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले शेयर करी है. सो यू नो what has to be included in the horizontal format of the balance sheet. ठीक है. So I'm not going into these details. Let me just see. ये उन्होंने पूरा एक एक पॉइंट इसके अंदर कवर कर दिया है. If you don't understand any point, give me a call. मुझसे पूछ लीजिएगा कि कैसे है. वर्टिकल फॉर्म, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है. इसको बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है, राइट. एंड इट इज क्लियरर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. सबसे ऊपर तो कंपनी का नाम आएगा. यू विल से व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑन व्हाट डेट यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, राइट. देन यहां पर आप एक एक करके पहले सारे के सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स क्लैरिफाई करेंगे. दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स दैट यू हैव. उसके शेड्यूल का नंबर यहां पे डालेंगे, राइट. शेड्यूल पार्ट 2, शेड्यूल 6 पार्ट 2, शेड्यूल 6 पार्ट 3 और पार्ट 4 आप बना रहे हैं. तो शेयर होल्डर्स फंड में आप लिखेंगे कैपिटल कितना है आपके पास. कैपिटल के अंदर आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. उसके बाद आप रिजर्व्स और सरप्लस बाय नेम डाल सकते हैं. इस साल का और पिछले साल का, इस साल का पिछले साल का. केवल ये दो नहीं आएंगे, मतलब जितनी मल्टीपल लाइंस आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं. आज की डेट में एवरीथिंग इज मैनेज्ड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. यू डोंट रियली हैव टू राइट इट, बट यू शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड हाउ डज इट लुक लाइक. आप जब जर्नल एंट्रीज करते हैं वहीं से ये सब चीजें पॉपुलेट होनी शुरू हो जाती है, राइट. लोन फंड्स, right. So from where you have acquired the capital, secured loans, unsecured loans. Again, names आप सबके लिख सकते हैं. Previous year, current year, previous year, current year, each of them, and then you can do a total for this A for 1 and 2. Second, इन जो funds को आप source करके लाए, इनका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? Where are you applying these funds in terms of fixed assets, right? What is the total gross fixed assets block? तो यहाँ पर उसका amount आ जाएगा. लेस डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन खत्म करेंगे. नेट ब्लॉक, राइट. एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एनीवेयर दैट यू हैव इन्वेस्टेड मनी वेयर द फिक्स्ड एसेट हैज नॉट बीन कंप्लीटली डेवलप्ड, उसको आप यहां पर डालेंगे. बिल्डिंग आप खरीदने वाले हैं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट. टेक्नोलॉजी हायर कर रहे हैं, वो आप यहां पर अमाउंट डालेंगे. अब ये ग्रॉस ब्लॉक के अंदर भी आप नीचे डिटेल्स डाल सकते हैं. लैंड इतना है, बिल्डिंग इतना है, मशीनरी इतना है, फर्नीचर इतना है. देन यू डिडक्ट द डिप्रिसिएशन एंड ब्रिंग अप द नेट ब्लॉक. इन्वेस्टमेंट्स आई हैव टोल्ड यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स व्हिच मे नॉट बी रियलाइज्ड इमीडिएटली. ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, उसके अमाउंट यहां पर आएंगे. करंट एसेट्स देखिए, इसके अंदर वही नाम है, इन्वेंटरीज, स्टॉक, debtors, cash and bank balances, other current assets if any, loans and advances I have told you, debtors, bills payables and other types of loans that you have given to any other customers. अब इसके अंदर से ही आप current liabilities अगर घटा देते हैं तो क्या बन जाती हैं? net current assets या working capital. What is the formula of calculating working capital in accounting? Current assets minus current liabilities. So if you deduct current liabilities from the current assets, you will get what are the net current assets or what are the net working capital for you. Miscellaneous expenses. Miscellaneous expenses मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं, which are to be written off over a period of time. तो जितना portion उसका write off नहीं हुआ है, that you are going to mention over here: preliminary expenses, underwriting expenses, long-term advertisement expenses, etc., etc. Then comes profit and loss account. मतलब profit and loss account से जो आप profit या loss लेके आएंगे वो यहां पर आप डालेंगे. And then it comes the total.
ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट के वर्टिकल फॉर्म को कंपेयर करें उस फॉर्म से हॉरिजॉन्टल से, तो ये आपका कैपिटल आप वहां कवर कर रहे हो शेयर कैपिटल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस को लाइबिलिटीज साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखा रहे हो, लोन्स को अपना लाइबिलिटीज साइड में दिखा रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को आप अलग दिखा रहे हो, करंट लाइबिलिटीज को आप लाइबिलिटीज साइड में दिखा रहे हो, राइट, और ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है इसको एसेट साइड में दिखा रहे हो। तो आइडियली दिखा सेम ही तरीके से रहे हो, ट्रीटमेंट अलग कर रहे हो। वहां वर्किंग कैपिटल दिखाने की बजाय you are putting current liabilities into the liability side and current assets into the current asset side. Here what you are doing, you are just calculating the working capital by deducting current liabilities from current assets. That is the only difference. ठीक है, ओके सर। तो ये सारे अलग अलग तरीके के, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का फिर से यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, ये सारा आप पढ़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे बन सकती है। अब इन्होंने ये एक एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बना करके दिखाई है, सोर्सेज ऑफ फंड्स कैसे डाल सकते हो आप, क्या कर सकते हो, ये सब एग्जांपल्स हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जनरल बिजनेस प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ये आप समझ सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट आई थिंक नाउ यू कैन जस्ट गो थ्रू द फाइनल अकाउंट्स। ये मैंने 2 चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को गो थ्रू कर लीजिए, उसके हेड्स को गो थ्रू कर लीजिए, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर योर CT1। ठीक है।